सेक्स मीन्स वाट, क्योंकि सेक्स एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में बोलना तो दूर, सोचने के लिए लोग तैयार नहीं होते। फीमेल का जो अधिकार है वो हमें पता भी नहीं था कि फीमेल के क्या क्या मतलब अधिकार हैं, उसके बारे में हमें पता चला। सबसे बड़ा प्यार बढ़ता है। अगर हम देखते हैं कि अगर हमारी पत्नी खाना बना रही है, अगर हम उसके साथ थोड़ी सी मदद कर देते हैं तो यहाँ पे भेदभाव ना होकर प्यार ज़्यादा बढ़ जाता है। जेंडर का नाम सुनते ही उत्सुकता सी हुई कि हमें क्या सेक्स एजुकेशन देने के लिए बुला रहे हैं। तो जब उनको ये पता लगता है कि ये आदमी और औरत के बीच में जो डिफरेंस है उसके विषय में बात कर रहे हैं, तो बोलते नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। The stabilization of population has been one of the serious challenges faced by India. Controlling numbers seemed an urgent task and promoting sterilization became a key strategy. However, it was soon realized that the program would be only partially successful unless the service provider could deal with the needs of the client in a comprehensive way. This is especially true in case of women clients, a primary focus of the program. कई वास्ते आज हटा आया हॉस्पिटल में नसबंदी कराने आया। अच्छा, था का कितना बच्चा बच्ची है? एक लड़का और एक लड़की। तो कड़ी नहीं बताया आंगनवाड़ी बहन जी ने था हमत सको नसबंदी कई वे। हाँ, बाल बच्चा नहीं आया। तो था का घर वाला नहीं करा सका? नहीं आया, क्यों नहीं आया? नसबंदी बंद करवाने। हाँ, मैं आ गई। मैं तो ये पूछ रही हूँ, था तो आ गया। हाँ। था का घर वाला नहीं क्यों नहीं कराया नसबंदी? अब घर वाला ना करा मैं। Since the 50s and the 60s and 70s, there's been a lot of emphasis on family planning programs, on making efforts to stabilize population programs in India. And there has been some amount of success as well. People have accepted family planning services. People have changed what has been sizes. I mean, smaller and smaller families are becoming more and more desirable. There's been also a lot of learning globally as well as in India in the way population programs should be implemented. And some of this was articulated very, very strongly at the International Conference on Population and Development that was held in Cairo in 1994. There was a realization that there needs to be a slight shift in the approach to clients and a difference in the way that we design and implement programs. And one of the major shifts was that we realized that women are the center of programs, that women need to be empowered to make their choices, that programs need to be designed in ways that closely respond to their individual needs rather than to national and to demographic needs. When one is interfacing with a client, you need to be guided by what the client wants and needs. So client choice, meeting needs, client rights, reproductive rights of men and women, these all became very important factors that we realized needed to be woven into program design. And that in a way has guided this gender training of service providers. Gender training की आवश्यकता इसलिए है कि अभी जो हम देख रहे हैं अभी के माहौल में, in a present scenario, the sex ratio which is going down and down, women empowerment is required and we are already celebrating it on 8 March. उन सारी चीज़ों को देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने के लिए, लड़कियों को बराबरी का दर्जा देने के लिए और एक ये जेंडर बायस जो है, दिस सेक्स रिलेटेड इश्यूज इन ह्यूमन बीइंग थिंकिंग, इसको हटाना होगा. So one challenge was, how do you transmit this knowledge in a way that relates to day-to-day functions of doctors and nurses? Other challenges were that even if you succeed in doing that at a small scale, can you do it on a large scale? And if you want to do it on a large scale, it's got to be something that is within the ability
of the health sector itself to do. So we worked it out in two different ways. In Rajasthan, for example, the training is provided in partnership with a non-governmental organization. In Madhya Pradesh, the training is managed and provided directly by the health system. And of course, the second way is the more sustainable way. But each has benefited from learning from the other. We invite different healthcare providers of different category for 3 days, and we sort of sensitize them on gender issues. During this training, we take them through a series of things. The first thing is that we try to impress upon them and try to tell them about the difference between sex and gender, how sex is a biological construct while the gender is a social construct, and how gender is, because of its social construction, it is hierarchical and places women into a subordinate position. With an aim to make medical care more accessible to women, a comprehensive gender training program has been designed for medical officers and paramedics. The training encourages open dialogue on a range of issues related to gender-based discrimination and how this discourages women from using health services. यौन संतुष्टि प्राप्त करने का क्या तरीका? जेंडर क्या है? इतना मुझे मालूम नहीं डिटेल का। तो जेंडर लिंग अर्थात समाज में या पूरी प्रकृति में नर और मादा 2 भागों में बटी हुई है, तो मेल जेंडर एंड फीमेल जेंडर। किस तरह है? The objective of this session is to make the participants understand the roles prescribed by society on the basis of whether one is male or female and the division of work dictated by this identity. This session is designed in such a way that the difference between sex and gender becomes clear. मेरी ओपिनियन में ये मेल है, और मेल इसलिए है कि न तो कोई इसके पास साड़ी वगैरह दिख रहा है, कुर्ता पजामा पहन रखा है, पुरुष है, पैरों में पायजामा नहीं दिख रहा, हाथों में चूड़ियाँ नहीं है, और सोफे पे आराम से बैठा है। सोफे पे आराम से बैठा है। लेडीज को घर में तो काम रहता है, बहुत सारा बैठने का इतना मौका ही नहीं मिलता। फिर वहाँ जब जेंडर के बारे में बताया गया कि महिला पुरुष के बीच जो अंतर है, सामाजिक अंतर है, वही जेंडर कहलाता है, और जेंडर समाज ने बनाया है, ये परिवर्तित हो सकता है। An interesting game brings out the hierarchy of class, caste and gender and how it affects women. Trainees play different roles. For instance, a male doctor plays the role of a poor woman. Okay. आपको लगता है कि मैं जिस चरित्र में अभी हूँ उस चरित्र के आधार पर ये काम मैं कर सकता हूँ, तो आप एक छोटा कदम आगे बढ़ाएं, और आपको लगता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ तो एक छोटा कदम आप पीछे बढ़ाएं। पहला काम जो मैं आपको सुना रहा हूँ ये, यदि आपने हाई स्कूल तक पढ़ाई की है तो कदम आगे आएं, यदि नहीं तो कदम पीछे जाएं। अफवाह है कि आपके शहर में दंगा हो गया है, आप घर के बाहर अटक गए हैं। यदि आप घर वापस जाने में डरते हैं तो एक कदम पीछे, यदि नहीं तो एक कदम आगे। इससे क्या हुआ कि ये देखा गया कि जिसके पास सत्ता थी, जिसके पास पैसा था, जिसके पास पावर थी, जो पुरुष था, वो एकदम सबसे आगे बढ़ गया, जबकि जो महिलाएं हैं, जो अनपढ़ है और जिनमें सत्ता की जिनके पास दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, ऐसे लोग एकदम पीछे हो गए। हमारे खुद के एक बहन है, उसकी एजुकेशन जैसे हमारे मुकाबले नहीं हो पाई है। वो मुझे मतलब पूरा ट्रेनिंग के बाद महसूस हुआ कि ये केवल मात्र जेंडर की वजह से ही नहीं हो पाई। बाकी मतलब अगर ये जेंडर की अवधारणा नहीं होती समाज में तो मतलब मेरी बहन को भी उतनी ही शिक्षा मिलती जितनी हमें मिली।
The participants are asked to enact a role play about a woman having a reproductive tract infection and her interaction with doctors and nurses. एक शादी तो मतलब पहला फर्स्ट सीन नंबर फर्स्ट है मैं आपसे एक बात के बुछारी छू। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? मैंने बड़ी परेशानी हो रही है, कसा क्यों मुँह समझ में नहीं आ रही बात। बताओ तो सही, क्या परेशानी हो रही है? शर्माओ मत, बताओ क्या परेशानी है। हमारे कहीं पेशाब की जगह काफी दिनों जलन भी हो छे। के भी तकलीफ है। हाँ यहाँ के भी यहाँ भी ना दिखाओ पहली तो यहाँ कहीं तो हुई थी। मैंने यहाँ से क्यों था को इलाज कराओ, थोड़ा थोड़ा कंट्रोल रखो, पर मानने की बाप की बात। देखो मैं बुलाऊंगा बाद में, डांटूंगा ना। This is followed by a detailed analysis of the social and cultural biases which limit women's access to healthcare. The role played by the healthcare provider is scrutinized and participants are guided on how to be more sensitive in similar situations. काउंसलिंग कैसे की जाए, खास करके इस पर्टिकुलर इश्यू पे जो कि बहुत सेंसिटिव है, हर कोई इस पर नहीं कर सकता, उसके लिए एक स्पेशल उनको हम तैयार करते हैं और इस चीज़ पर उनको ज़्यादा वेटेज देने के लिए कहते हैं कि आप महिलाओं से किस तरीके से बात करें, ओपीडी में उनको कैसे प्रेफरेंस दें, उनके दुख दर्द को समझें, सो दैट दे विल बी एबल टू टेल यू इन द डेप्थ ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। अदरवाइज वो सुपर स्पेशल अपना बोल के चले जाएंगे। ट्रेनिंग से पहले हमारे पास जो भी मेल या फीमेल पेशेंट आते थे, हम सब उनको एक ही तरीके से देखते थे कि अब फीमेल पेशेंट कोई आए तो उसको जो प्राइवेसी चाहिए, तो हम उनसे जो बात करते थे तो नॉर्मली सबसे पूछते थे क्यों अम्मा दांत की शिकायत है क्या भाई, तो वो थोड़ी हेजिटेट करती थी। ये जो एक सेंसिटाइजेशन था पहले ट्रेनिंग से पहले वो कम था। ट्रेनिंग के बाद अब लगा कि वो अपनी प्रॉब्लम खुल के हमें नहीं बताएगी अगर हम उनसे प्राइवेसी कुछ नहीं रखें। तो हमने अपने जितने चैम्बर, डॉक्टर्स के चैम्बर हैं या फिर हमारे जो भी लेबर रूम है या इंजेक्शन रूम है, तो हमने प्रयास किया कि उनके लिए थोड़ी सी प्राइवेसी मेंटेन की जाए कि वो कुछ कंफर्टेबल फील कर सके और हमें जो अपनी प्रॉब्लम है वो ठीक से बता सके। और ये भी उनको इंश्योर करते हैं कि सिर्फ आप अपना ट्रीटमेंट कराएंगे तो ही उससे ठीक नहीं होगा, यू शुड ब्रिंग योर हस्बैंड विथ यू, और उसके लिए हम उनको धीरे धीरे कन्विंस करते हैं। जेंडर ट्रेनिंग का जैसे इस हॉस्पिटल सेटिंग में, डॉक्टर्स में या फिर फीमेल में, मतलब हमारे जो स्टाफ में काफ़ी इसका इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन इम्पैक्ट आने में धीरे 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 टाइम लगेगा। निश्चित तौर पे सामाजिक लिंग भेद जो महिला और पुरुष में है उसको अपन जानते हुए भी महसूस नहीं कर पाते हैं, और चिकित्सा विभाग के कर्मचारी होने के नाते या अधिकारी होने के नाते उनको ये ट्रेनिंग देना आवश्यक था ताकि वो संवेदनशील बने। जेंडर की अवधारणा पैदा होने के बाद हमने मतलब काम में जरूर बदलाव किया है। क्यों कि महिलाओं के प्रति हमारी सिंपैथी बढ़ी है, हम सहानुभूति दर्शाने की पूरी चेष्टा कर रहे हैं, मतलब जेंडर की ट्रेनिंग के बाद। उससे पहले हम ऐसा कुछ सोचते नहीं थे। हम पहले किसी से बात नहीं कर पाते थे, बोल नहीं पाते थे कि आदमियों से कैसे बोलें, थोड़ी हिचकिचाहट लगती थी, पर अब वो नहीं है, आप सब बात कर लेते हैं। ये नहीं कि आदमी है या औरत है, इससे कैसे बात करें। ट्रेनिंग से पहले हम लोग अलग अलग आया करते थे, तो वहाँ जब गए तो हम लोग को मतलब इसके बारे में जब से जानकारी हुई तो हमारी एएनएम जो है और हम अब साथ ही में आते हैं साथ में और साथ में ही काम करते हैं, तो उनकी जो भी बात होती है वो बात करती रहती है, हम बात करते हैं। हमारे फील्ड में भी क्या होता है, जो कंडोम मांगना होता है, ओरल पिल्स वगैरह मांगना होता है, तो लेडीज़ वगैरह जो होती हैं ओरल पिल्स हमसे मांग लेती हैं, निरोध उनसे मांग लेती हैं। पहले क्या होता था कि ओरल पिल्स अगर लेडीज़ लेना होता तो केवल एएनएम से ही मांग सकती थी। पहले जैसे कोई पुरुष आ गया, अगर उसको कंडोम मांगना है तो हमसे ना मांगे, मैडम जी वो कहाँ गए, जैसे नाम लेते थे भैया का, अरविंद भैया कहाँ गए, उनसे मिलना है, भैया क्या काम है, कुछ नहीं मैडम जी उन्हीं से काम है, हमसे नहीं बताते थे। पर अब हम लोगों के प्रचार प्रसार से बताने से अब सब खुल के बात कर लेते, मांग लेते कि मैडम जी हमें कंडोम चाहिए। जैसे RTI STI वाले आते हैं केस, तो उनसे पहले हम महिलाओं से तो बात कर लेते थे, लेकिन पुरुष में शर्म लगती थी कि इनसे कैसे पूछें कि आपको भी है। अब है तो जैसे पुरुष आ गया तो उनसे बोल देते हैं कि अपने पत्नी को लेके आओ, दोनों जन आओ, बात करो, उनसे बात कर लेते हैं।
सेक्स एंड सेक्सुअलिटी टॉपिक को थोड़ा सा हैंडल करना हम लोगों के लिए भी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोग उतना खुल के बात या तो नहीं कर पाते थे, थोड़ा सा अपनी मर्यादाओं में रह के बात करना, और पार्टिसिपेंट्स भी उसमें काफ़ी थोड़ा सा हेजिटेट करते थे। मेल फीमेल रिलेशन, मेल फीमेल रिलेशंस, as for example after marriage, husband and wife relation, इंटरकोर्स, इन्होंने तो कह अट्रैक्शन और रिलेशन। क्या रिलेशन मतलब? सेक्सुअल एक्टिविटी, females like breasts and the hips. Hips. Excitement, right? Excitement. After sex there is satisfaction. Sex is feeling of gratification, pleasure and satiety through physical apparatus of reproductive organs. एकल किशोर व किशोरियों को गर्भ निरोधक सेवाओं की आवश्यकता नहीं होती। प्री मैरिटल रिलेशंस बनने के चांसेस उनके ज्यादा हैं और अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के चांसेस उनके ज्यादा हैं, इसलिए उनको सेक्स की नॉलेज भी होनी चाहिए, प्रोटेक्शन की नॉलेज भी होनी चाहिए और ये मींस असेसेबल भी होने चाहिए। नहीं, हम तो कह रहे हैं साहब एडोलसेंट्स को सेक्स एजुकेशन की जरूरत हो सकती है, कॉन्ट्रासेप्टिव की नहीं है। These are the most vulnerable group for HIV and STD. Yeah. Okay. So therefore contraceptives must for। अगर आप जो ये अनमेरिड ये सिंगल जो पर्सन है, बच्चे बच्ची, इनको अगर आप कंट्रासेप्टिव देते हो तो इसका मतलब आपकी तरफ से रजामंदी है कि आप जाओ और फ्री सेक्स करो। हमारे कहने का मतलब ये कि इफ दे नीड देयर शुड नॉट बी एनी रेस्ट्रिक्शन ऑफ अवेलेबिलिटी टू द पर्सन ओनली बिकॉज दे आर एडोलेसेंट्स। हम लोग को तो सबसे बढ़िया यही सेक्स वाला लगा, बाकी तो थोड़ी बहुत हम लोग जानकारी रखते थे हर बारे में। अगर इसकी जानकारी हम लोग को पूरी हो जिसको हो जाएगी, इसके बाद समाज में काम करने में, उनकी समस्याएं समझने में, उनको बताने में, फिर तो सारी समस्याएं समाज की हल हो जाएगी। जेंडर ट्रेनिंग के बाद में काम में भी फ़ायदा हुआ है और हमारा जो ओरिएंटेशन है महिलाओं और पुअर पेशेंट्स के प्रति उसमें भी परिवर्तन काफ़ी हुआ है। हमारे यहाँ पे जो डिलीवरी के लिए पेशेंट्स आते हैं वो भी काफ़ी संख्या में बढ़े हैं और जो हमारे यहाँ पे एनसी रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेबर रूम को काफ़ी इम्प्रूव किया है। ट्रेनिंग से पहले जो हमारे यहाँ एनसी केसेस आते लगभग 150 के आसपास एनसी केसेस रजिस्टर्ड होते थे। अब जब उसके बाद में हमारे यहाँ कम से कम 350 के आसपास एनसी केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। यहाँ पे उनके ब्लड ग्रुप, हीमोग्लोबिन वगैरह और यूरिन एल्बुमिन, शुगर, सब जो बेसिक फैसिलिटीज जो एक एनसी केस के लिए 5 बार जांच करने के लिए, वो सारी सुविधाएं हमने यहाँ पे डेवलप करी है अपने स्तर। ये गोली है, आपको रोजाना एक लेनी है और खाने के बाद लेनी है। There are a number of training institutions in the government system which provide training on a routine basis, nationally, statewide, district-specific institutions. And it's clear that each of these institutions needs to take stock of what is going on in each training program and to look at the material, to look at the curriculum and to see what could be adjusted, where are all the opportunities for incorporating this perspective of gender sensitivity. हमारे पास जो भी आजकल ट्रेनिंग्स हो रही हैं, चाहे वो HIV एड्स की हो, चाहे वो रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम हो, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम हो, इन सब में हम लोगों ने अपनी तरफ से RCH में तो नॉर्म्स में भी आया है, सिलेबस में भी आया है, कैरिकुलम में है, बट इन अदर्स वी आर आल्सो टॉकिंग अबाउट द जेंडर। The impact of gender discrimination on reproductive health of women is discussed in great detail during the 3-day-long training program. Emphasis is laid on male participation in family welfare and the effect of violence on the reproductive health of women. It gives the participants a new perspective, leading them to make a positive change in their professional and personal lives. फ़ायदा तो ज़रूर होगा। कुछ जो फीमेल हत्याएं हैं इंटरयूटेराइन जो कम होंगी। जैसे कई बातें जो बताई गई कि जैसे हस्त मैथुन के बारे में या परवर्टेड सेक्स के बारे में, नेचुरल क्या है, अननेचुरल क्या है, सेक्स क्या है, जेंडर क्या है, इन सब बातों का जब ये निराकरण हो गया है
तो दिमाग से काफ़ी कुछ समस्याएं हट गई हैं, काफ़ी कुछ बोझ हट गया, तो एक नया ज्ञान जैसा जो होता है वो हमारे को प्राप्त हुआ है। सेक्स और सेक्सुअलिटी के बारे में जितना अच्छा ओपन डिस्कशन अपन ने यहाँ किया और साइंटिफिक वे में, मेरे ख्याल से इतना अच्छा और ओपन डिस्कशन बहुत कम मौका मिलता है। पर्सनल लाइफ में तो सबसे पहले इम्प्लीमेंट करूँगा आज जाते ही अपने घर पे अपने जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है उनको डीलिंग करना सिखाऊंगा कि भाई आपको अपोजिट सेक्स है उसको कैसे बातचीत करनी है, हर प्रॉब्लम की आप जड़ तक पहुँचो। सिंपल डॉक्टर और एएनएम्स का क्या है, ट्रीटमेंट पार्ट पर हो गया है, द कॉज तक पहुँचने के लिए ये ट्रेनिंग हमको बहुत फ़ायदेमंद देगी। फ़ायदा तो होता है। कैसे? जैसे हमारी सोसाइटी में कुछ इसको सीक्रेट रखा जाता है, लेकिन जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अलग से, जैसे अदर सिस्टम्स हैं जैसे नेचुरल है सब कुछ, ऐसा कुछ अलग से नहीं है। सोसाइटी ने इसको इस तरह से कर रखा है, ये सीक्रेट है, जबकि ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है। When one is thinking and planning gender training, you do need to be realistic about your expectations, and you need to plan and chart out a future course of action, realizing that attitudes and beliefs are not going to change because of a 3-day training or a 12-day training. Something that has taken not only decades but actually centuries for us to make up our minds about is not going to change overnight. दूसरे डिपार्टमेंट को भी हम इन्वॉल्व करें, जैसे कि आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, या फिर पुलिस डिपार्टमेंट है। हमारा उद्देश्य है कि अगर ये प्राइमरी पाठशाला से शुरू कर दिया जाए बच्चों को तो सबसे बेहतर रहेगा। पंचायत में जैसे कब बोलते हैं लोग कि पंचायत में दीजिए, सेक्रेटरी में दीजिए, मीटिंग में दीजिए, इससे बेहतर है कि अगर हम प्राथमिक पाठशाला से इसका कोर्स शुरू कर देंगे तो बच्चे शुरू से इसके उद्देश्य को समझने लगेंगे। मेरे घर में जो मतलब जो महिलाएं हैं या जो लड़कियां हैं, उनकी शिक्षा और उनके पालन पोषण में भेदभाव नहीं करने का मैंने पूरा मानस बनाया। पहले मैं एमटीपी वगैरह ऐसे कराती, औरतों को एडवाइस करती थी, मेल फीमेल के बारे में भी, ऐसे सेक्स के बारे में भी उनको समझाती थी कि आप सोनोग्राफिया करवा लो, या वो मैंने सब छोड़ दिया सर। अब मैं ऐसा कुछ करती नहीं, उनको कुछ भी एडवाइस नहीं, मैं कहती हूँ हॉल से होने दो। ये तो मैंने चेंज किया, आप किसी भी स्टाफ को पूछ लो सर।